हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने रेशियो की बात की थी एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रपोर्शन। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग दिस ट्रिक एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो कि आप क्वेश्चंस करते थे यूनिटरी मेथड से, इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व होंगे, ट्रस्ट मी। And if you watch this video till end, you are going to find some fun facts and puzzle as well as always. So do watch and don't forget to like, share and subscribe the channel. So देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है. So before going into the solutions and questions, let's see what is proportion exactly. So दोस्तों proportion is nothing but the equation between the two ratios. हम लोग ने ratios के बारे में पढ़ा था दोस्तों. What are ratios? Ratios are written as in the form of A is to B, right? A is to B, correct? This is one ratio. Now, if there is equality of ratio, that is called as proportion. Equality of ratio. What is equality of ratio? If there are two ratios, suppose A is to B and C is to D. If they both are equal, if the two ratios are equal, then this equation will be called as a proportion. Okay, so that means A is to B is, you can write this in this way, equal to को आप 4 डॉट से यानी डबल कोलन से आप दिखा सकते हो. 4 डॉट, this dot, this dot, this dot, this dot. So this is ratio A is to B and 4 dots, then C is to D. So इसमें कुछ concepts हैं. Before going to the question, we are going to talk about some concept which is very interesting. तो इसका पहला concept number 1 is कि this is nothing but ratio equality. This represents ratio equality. To simplify it, I will take an example. So अगर मैं आपसे बोलूँ 2:4 is equal to 3:6 होगा, क्योंकि this will come out to be 1:2 and this will also be come out to 1:2. So both the ratios are equal. That means this equation is a proportion. So left side का ratio, right side का ratio equal है. That means this is proportion. This is in the same proportion. This is equal. Two ratios are equal, right? So this is one concept. Okay, now so ratio equality is the first concept. Second concept of proportion is so okay, before going to the second concept, मैं आपको बता दूं ये और ये, these are extreme terms, correct? ये extreme terms हैं और ये middle term, we can call it middle terms. These are middle terms, these are extreme terms. और between terms और middle term we can call it these are extreme terms. तो इस जब भी proportion की बात आती है तो ratio product of extreme terms is always equal to product of middle term. That means A into D will always be equal to B into C. You have to just keep this in mind. Why it is so and how it came? So देख लेते हैं कि ये कैसे आया. A, अगर हम A to B की बात करेंगे तो we can write it in the form of A upon B. इसको लिख सकते हैं हम C अपॉन D, राइट? आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है. इक्वेशन है तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. दैट मीन्स A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C. दिस इज दैट व्हिच आई हैव रिटन, राइट? सो जब भी रेशियोज होते हैं, जैसे प्रोपोर्शन होता है, तो उसमें जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट और जो मिडिल टर्म होते हैं उनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. Make sense till now? So this is the second concept, I would say. The product of the extreme will be equal to the product of the middle terms. Third concept is, एक केस ऐसा आता है इसमें जब B और ये जो middle term है वो बराबर होते हैं. इसको हम बोलते हैं continued proportion. Continuous proportion. कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं कि A is to B is equal to B is to C. इसका मतलब जो मिडिल टर्म होंगे वो ऑलवेज
इक्वल होंगे, वो सेम होंगे। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूँ आपको 2/3 इक्वल टू 3 सपोज अगर ये प्रपोर्शन में बोल रहा हूँ मैं 5, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर होगा, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस प्रपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, सो दिस मीन्स जो मिडिल टर्म होते हैं वो सेम होते हैं, वो एक ही होता है इस केस में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेज कि जो मिडिल टर्म है अगर वो अगर कोई प्रपोर्शन है जो कि कंटिन्यूस प्रपोर्शन है, दैट मीन्स जो मिडिल टर्म होता है उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है b² इक्वल टू ये उसका रूट होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स का रूट होगा मिडिल टर्म ऑलवेज। कैसे आया ये देख लेते हैं एक बार। a/b था, ये b/c था, राइट। ये हो जाएगा a क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट, तो a इंटू सी इक्वल टू b इंटू b, b इंटू b इज नथिंग बट b², और ये आ जाएगा आपका b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू सी, करेक्ट। ये मैंने आपको बताया। तो अगर इफ द रेशियोज आर इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, देन द मिडिल टर्म विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रूट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट। You have to just keep this in mind. So these are the few concepts. There are more concepts जो कि हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू क्या है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, ट्रस्ट मी, दिस कंप्लीट proportion will be very very easy for you. Hope this is now clear. And now we are going to go do some questions, some easy questions first. Then we are going to move to the some advanced questions that will be very useful for you to make the solution very quickly. So दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रपोर्शन। व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, पहले हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों डायरेक्ट प्रपोर्शन तब होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। दैट मीन्स अगर आपकी 5 बुक की कीमत 50 रुपए है, राइट, तो 10 बुक की कीमत 100 रुपए होगी, राइट। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ बुक्स कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसकी सामने वाली चीज भी बढ़ेगी, देन इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। दैट मीन्स अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 पेन की कीमत, या अगर आप स्पीड बढ़ाते हो, राइट, अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर स्पीड कम कर दोगे आप तो 1 घंटे में आप कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा 1 घंटे में जितना आप कवर कर सकते हो। अगर स्पीड आपकी कम हो गई तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा जितना आप 1 घंटे में कवर करते हो, राइट। सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑलवेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। यू हैव टू जस्ट मेक दैट क्लियर इन टू माइंड। सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में अभी पढ़ लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑफ बोथ काइंड। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों? ये था डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट होता है, दैट मींस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट या इनवर्स, इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों? ये होता है जब एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी चीज की वैल्यू कम हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 आदमी एक खेत 10 दिन में उसको जोतते हैं, राइट, प्लॉ करते हैं 10 दिन में, 10 days। 5 men take 10 days to plow a field। 10 आदमी कितना दिन मिलेंगे? 10 men, 5 men थे, अब 10 आदमी 10 men कितना टाइम लेंगे उस सेम फील्ड को प्लॉ करने के लिए, जोतने के लिए? दैट मीन्स वो आधी हो जाएगी। अगर आदमी कम है तो ज्यादा दिन लेंगे, अगर आदमी ज्यादा है
तो कम दिन लेगा, राइट। अगर कोई काम आप घर की सफाई कर रहे हो तो घर पे एक कमरे में झाड़ू लगानी है, अगर 2 लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 1 लोग करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर इसको 5 दिन में इसका काम हो जाएगा, आधे दिन में इसका काम हो जाएगा। यहाँ पर इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, दैट मीन्स A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, यानी एक चीज बढ़ रही है, अगर मैन बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। एक चीज अगर बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ गया, जो मैन है वो बढ़ गए तो डेज जो होंगे वो कम हो जाएंगे, करेक्ट। दिस मीन्स दिस हैज अ इनवर्स रिलेशन। सो कहीं कहीं पे दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे जहां पर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज की वैल्यू भी बढ़ेगी, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक जगह ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब एक चीज की वैल्यू कम हो रही है पर दूसरी चीज की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट रिलेशनशिप, देन वी विल सी ऑन द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सो दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, क्वेश्चन सेज 5 बुक का प्राइस जो है, प्राइस यू $225 rupees, or let me make it easy, 20 rupees. Okay, now you have to tell me the price of 10 books, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, 50 बुक्स का प्राइस क्या होगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो आपको पता है यूनिटरी मेथड आपको सबको आता होगा, आई नो कि बहुत इजी है ऐसा क्वेश्चन, बट अगर आपको प्रोपोर्शन से करोगे तो टफ क्वेश्चन जो होंगे जिसमें 3 रेशियोज होंगे या 4 रेशियो होंगे वो भी आप बहुत इजी कर पाओगे। तो एक बार समझने के लिए मैं आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको रेशियो के टाइम पे बताया था, इफ यू रिमेंबर कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है, रेशियो इज ऑलवेज ऑफ सेम यूनिट और सेम काइंड, दैट मीन्स अगर आप रेशियो रुपीज का निकाल रहे हो तो अगर ऊपर रुपीज अमाउंट है तो नीचे भी रुपीज ही आएगा। तो रेशियो इज ऑलवेज ऑफ द सेम काइंड। अगर आप मीटर का निकाल रहे हो रेशियो तो नीचे भी मीटर ही आएगा, रुपीज और मीटर का आप रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसका मतलब अगर बुक्स, तो इसका मतलब आप रेशियोज बुक्स जो रखोगे वो एक तरफ रखोगे, यानी सेम यूनिट का पार्ट जो होगा एक तरफ रखोगे और जो दूसरी यूनिट का पार्ट है वो एक तरफ रखोगे, यानी इसका मतलब बुक्स अपॉन बुक्स आएगा एंड रुपीज अपॉन रुपीज आएगा। बुक्स अपॉन रुपीज नहीं आएगा, बुक्स अपॉन रुपीज नहीं आएगा, या रुपीज अपॉन बुक्स नहीं आएगा, बुक्स अपॉन बुक्स एंड रुपीज अपॉन रुपीज आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सिंस बुक्स अपॉन बुक्स आ रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपको ये बहुत ध्यान रखना है बात कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पर बुक्स का आपको पता है कि बुक्स अगर नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा हो जाएंगी तो जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होगा वो भी बढ़ेगा। दैट मीन्स बुक्स ज्यादा होने के लिए अमाउंट बढ़ेगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए आपको इस बुक का और आपको सिंपल ऐसे रेशियो कर देना है। दैट मीन्स 5 बुक्स अपॉन 15 बुक्स, 20 बुक्स अपॉन x रुपीज। ओके, तो आपको केवल ये कर देना है, बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है। तो आप दैट मीन्स 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, दिस विल बी योर आंसर। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता है कि जो एक्सट्रीम रेशियो का प्रोडक्ट होता है दैट मीन्स 5 इंटू x इज इक्वल टू 15 इंटू 20। इसको आप सॉल्व कर लोगे इजी, यहीं पर हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं आपको पूरे स्टेप्स करके दिखा रहा हूं। तो दिस मीन्स 60, यानी 15 बुक्स की कीमत जो आएगी दैट विल बी 60 रुपए। इट इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्वेश्चन है जहां पर बुक्स की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो अमाउंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं आपको बोल देता कि 5 बुक की कीमत 20 रुपए है तो 2 बुक्स की कीमत क्या होगी, तब भी ये सेम ही सॉल्व होता है। यहाँ पर बस 2 आ जाता, यहाँ पर
2 आ जाता, सॉरी 2 आ जाता। ओके, तो ये आप सॉल्व करोगे, 8 रुपीज आ जाती है, तब आपकी वैल्यू 8 रुपीज आ जाती है। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो आपको सीधे ही ऐसे करके लिख देना है, दैट्स इट। ओके, मेकिंग सेंस? नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन ऑन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखते हैं कि क्या है। सो क्वेश्चन सेज ए 50 मैन रीप अ फील्ड इन 28 days, हाउ मेनी डेज 10 मैन विल टेक टू रीप द सेम फील्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इस केस में अगर मैन हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज, यानी मैन अगर हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, राइट। तो अगर एक चीज हम बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज कम हो रही है, इसका मतलब जो ये है होगा, इसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, मैन विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज और अदर वे अराउंड, डेज विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे कि आपको डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 15 मैन टेक्स, सॉरी इट टेक्स, तो टेक्स को आप नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे, इट टेक्स 28 days। और कोशिश किया करो आप कि जो चीज नहीं पता है वो हमेशा फोर्थ टर्म हो, वो हमेशा लास्ट टर्म हो, दैट विल बी इजी टू फाइंड इट आउट। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर डेज नहीं पता इसलिए हमने डेट्स को ऐसे लिखा है। 10 मैन का आपको बताना है कि x डेज लेंगे, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर दिस। तो क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, आपने पहले ही बता दिया कि मैन बढ़ेंगे, आपको पता लग गया, ओके मैन बढ़ा देंगे तो डेज कम हो जाएंगे प्लॉ करने के लिए। तो इसका मतलब आप इसको रिवर्स कर दोगे, इसकी जगह पर 1/28, यहाँ पर 1/x कर दोगे और रेशियो डायरेक्ट आप लिख दोगे। रेशियो क्या जाएगा, 15/10 इक्वल टू 1/28 अपॉन 1/x। तो ये बेसिकली ये रिवर्स हो जाएगा, 15/10 इक्वल टू ये x ऊपर चला जाएगा, x/28, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, राइट। 28x ऊपर चला गया, 28 नीचे आ गया। आप इसको आप सॉल्व कर लोगे, दैट मीन्स 15 into 28 अपॉन 10 इक्वल टू x। 5 3s are 5 2s are 5 14s are, that means this will give you x is nothing but 42, 14 3 is 42, तो 42 डेज लगेंगे इसको। यानी अगर 15 आदमी 28 दिन में कर रहे थे तो 10 आदमी को ज्यादा दिन लगेंगे, राइट। सो इट विल टेक 42 days टू कंप्लीट द same work, to reap the same field. Hope you are getting this. This is very simple questions. We are going to go forward with some advanced questions. Yeah. So दोस्तों, एडवांस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सेशन में। देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। देन वी आर गोइंग टू सी द फन फैक्ट एंड द पजल एज वेल। सो दोस्तों, जो आज का होमवर्क है, देयर आर 6 questions all together. Very easy. You can just by the same method which I have told you in the session, and you can just easily do that and forward me the answers over my mail, that is nambarashare@gmail.com. So the questions are, first question says find the fourth term. Fourth term is, you can also call that as fourth proportion. Fourth proportion to the numbers 6, 8 and 15. That means आपको find करना है 6:8 and 15:15 x. You have to find x. So just read the question clearly and find the answer. Question number 2 says find the mean proportion between 3 and 75. Mean proportion के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो बेसिक या मिडिल टर्म होते हैं वो सेम होता है, या कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको हम। तो you have to find this term. For question number 3 says if 15 books cost 35 rupees. Okay, what do 25 books cost? 21 books cost. Okay. Question number 4 says in a given time 12 person make 111 twice. In the same time 148 twice are to be made. Then how many persons should be employed? कितने आदमी इसको बना सकते हैं? Question number 5 says if 192 mangoes can be bought for rupees 15, how many mango can be bought for rupees 5?
Question number 6 is, if 15 men can reap a field in 28 days, in how many days will 5 men reap the same field? So the questions are very simple. I understand you will be able to solve it and do share the answers to me over my email. तो देखते हैं आज का फन फैक्ट्स एंड पजल क्या है. सो दोस्तों, अब बात आती है फन फैक्ट की आज के. तो आज का जो फन फैक्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट इट इज. सो आपको दोस्तों पता होगा कि जब भी रेन होती है या आई वुड से टैप से वाटर गिरता है, टैप से ड्रॉप गिरती है, वाटर ड्रॉप आई एम टॉकिंग अबाउट, एक बूंद गिरती है. तो जो रेन ड्रॉप होती है या टैप से ड्रॉप होती है या कोई भी अगर लिक्विड है उसकी अगर ड्रॉप हो, तो दैट ऑलवेज टेक स्फेरिकल शेप. वो हमेशा स्फेरिकल शेप ही लेती है. तो ऑलवेज टेक स्फेरिकल शेप. व्हाई इट इज? द रीजन बिहाइंड दैट इज, जैसे कि अगर कोई भी आप ड्रॉप अगर ऐसे गिराओगे ऊपर से, एक ड्रॉप गिरेगी तो दैट विल कम्स आउट टू बी स्फेरिकल. बिकॉज जो वाटर होता है, जो उसकी सरफेस टेंशन होती है, यानी सरफेस पे जो उसका आई वुड से फोर्स लग रहा होता है, दैट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द सेंटर ऑफ दैट. वो जो ड्रॉप है, बीच जो वाटर है, उसके जो सरफेस जो है यानी आउटर पार्ट है जो वाटर का, वो हमेशा इन फोर्स लगाता है अंदर जाने के लिए. और क्योंकि द बेस्ट शेप और बेस्ट स्टेबिलिटी दैट ड्रॉप गेट्स टू मूव इनसाइड व्हेन इट इज स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल में हर जगह से फोर्स बराबर लगता है. तो ये नेचर की आई वुड से क्वालिटी है. अगर आप कोई भी चीज नेचर में देखेंगे वो हमेशा स्टेबिलिटी मांगती है. इट गोज टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, राइट. तो अगर आप ये पेन ड्रॉप करोगे, ये हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा. स्टेबल कैसे होगा? जब ये जमीन पे गिर जाएगा. जब तक हम अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, अगर मैं इस पर ड्रॉप करूंगा ये जमीन तक जाएगा, तो देयर इट गेट्स द स्टेबिलिटी और ये स्टेबल हो जाएगा. करेक्ट. अगर मैंने कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया. सिमिलरली इन द केस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं स्फेरिकल इसलिए होते हैं क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है, it want to gain the stability, and stability it can get when that is spherical in shape. Okay, so stability is the main part, क्योंकि वो वॉल्यूम जो होगा उसका मिनिमम हो जाएगा. और मिनिमम वॉल्यूम यानी स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम आई वुड से कि वो होता है स्फेयर शेप में. स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम विल बी देयर इन द स्फेरिकल शेप दैट इज आइडेंटिकल फॉर आई वुड से द सेम प्रेशर आउटसाइड, इसीलिए, और सेम फोर्स फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज व्हाई इट इज स्फेरिकल इन शेप. तो यू हैव टू जस्ट कीप दिस इन माइंड. ड्रॉपलेट्स होंगी, कोई भी टैप ड्रॉप होगा, कोई भी एक ड्रॉप होगा, वो हमेशा स्फेरिकल शेप रहेगा टू अटेन द स्टेबिलिटी. होप दिस इज क्लियर. लेट्स गो टू द पजल ऑफ टुडे. सो दोस्तों, आज का पजल बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट्स सी व्हाट इट इज. सो अगर आपके पास एक चेस बोर्ड है, तो आपको पता है कि चेस बोर्ड में 8 आपके वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं एंड 8 जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं. यू कैन काउंट इट, राइट. दिस इज अ चेस बोर्ड. इसमें 8 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 हॉरिजॉन्टल होते हैं, 8 वर्टिकल होते हैं, राइट. दिस इज द चेस बोर्ड. नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस चेस बोर्ड. आपको मुझे बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं, दैट मीन्स सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ के कितने स्क्वायर्स हैं इस चेस बोर्ड में. 64 आंसर इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग आंसर. Think of that. 64 is not the right answer. So you have to tell me how many squares are there in this chessboard. How many squares are there in a chessboard?
Hope this question is clear and very easy as well. You can try it and just you can answer you can mail me at nambaracharya@gmail.com, and you can also write me email. You can write a comment as well, and for the answers you can just watch the same space. If you like, share and subscribe the channel, you are going to see the answer very first as soon as I post it. So, and do not forget to click the bell icon. So please keep learning, keep growing, and do watch the answer of this puzzle and the next video as well with some more tricks and more fun. So keep learning, keep growing. Till then, bye bye.